Good afternoon, London. Good evening, India. Uh, we are. Good afternoon, London. Good evening, India. Uh, we are here with the episode 2 where Dha speaks. And I'm really delighted and really grateful to the great masters. I hope you enjoyed the last show with the none other than Pandit Kumar Bose and today I am really happy and feeling really honored that Pandit Jogesh Samsi ji is here and Namaskar. in the first half and the second half Pandit Samar Sahaji will be joining. So thank you viewers. I always I'm getting lots of feedback and support from all of you and thank you once again and I'm really thrilling and Panditji is here and now thank you again Jogeshji. It's really you are such a person, you know. When I uh, tried to call you, actually you called me back and that actually proves that you are such an humble person and you know such amazing personality, you know. I know you for a long time and Yeah, thank you once again. the reason I called back was I connected with you and met you when I had come with Ajoyda in 2000. Yes, yeah, yeah, I Uh, think 2002, maybe 2002 or 3. Yeah, 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 2003. So, yeah, 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 you know, yeah. it's been almost 17 years. So, uh, Yes, a very loving, affectionate voice from the past made me make the call myself. So, thank you for having me on the show, and uh, all yours. thank you so much Ji. Thank you so much. You know the subject, you know, when it came to my mind suddenly, the main point, the first question I'd like to ask you that you know, most of the time the main artist जो होता है, and I will concentrate my subject especially for the vocal music because as you know that I'm a student of vocal music and it will be a message for the younger generations, you know, so that they can get something from your points. So most of the time, you know, when you go to play for a concert, so you don't know what the main artist will be singing, what the tal should be, you know. But uh, when we witness your performance, you know, when the main artist starts the first sa and you play the first dha or dhin, whatever, you know, what I feel that you already started singing in your heart, you know. गाना आपका अंतर में भी शुरू हो गया. So हाँ, that is the सही point. बात, Yeah, ये आप थोड़ा बिल्कुल सही। बताओ, ये आप थोड़ा बताइए. देखिए, पहली बात तो साथ संगत, accompaniment and solo. These two aspects are two different art forms altogether. Correct. If you are a very good soloist, it doesn't necessarily mean that you have developed the art of accompaniment. Correct. Art of accompaniment involves uh, knowledge of all the other types of music that you are accompanying. So Absolutely. right now, since you focused on vocal music, Yeah. I was fortunate to be born in a vocal music family. Learned vocal music from my father, Pandit Dinkar Kaikini. Yes. My mother, Shashikala Kaikini ji, she also taught me when I was very little. So vocal music has been around me and part of me as a growing a tabla player, as a tabla student all my life. So जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम शुरू होता है, गायक शुरू करता है, पहली बात तो गाना गाने के संस्कार होने बहुत जरूरी है, ये तो बात है। लेकिन Absolutely. उसके भी पहले आप
साथ संगत कर रहे हैं, और साथ संगत का मतलब पहले समझ लेना चाहिए, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द यंगर जनरेशन, Yes, please. दैट साथ संगत मतलब यू आर प्लेइंग ए सपोर्टिव रोल, यू आर प्लेइंग एन सपोर्टिव एंड एन एनहांसिंग रोल, एंड बेसिकली जैसे जाकिर भाई बहुत लोगों को समझाते हैं कि भाई जब हम लोग बस में बैठते हैं तो इतने सारे पैसेंजर होते हैं लेकिन ड्राइवर एक ही होता है। Correct. तो ड्राइवर का काम है रास्ते पे रखना Correct. बस को, Correct. गाड़ी को रास्ते पे रखना ड्राइवर का काम है। तो ये बेसिक, अगर बेसिक लैंग्वेज में समझाना है तो टू कीप अ वेरी गुड ठेका, सुरीला ठेका, वजनदार ठेका, और गाने को समझ के ठेके को अ, अ, भरना, तो Correct. ये बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर a good vocal accompanist is to develop a good theka, and Absolutely. always have this in his mind that he is basically playing a supportive role. He is basically trying to enhance the vocalist's concert by providing the theka that the vocalist desires at that particular time. Now, before the theka begins, when you're on the stage with the artist and he or she starts the alap, right then and there, the tabla player ideally should get into the moment of the concert, Ha and ha ha. get into the emotion, be one with the emotion of the vocalist, with the artist, because you see, being one with the emotion is so important for an accompanist. अगर आप उनके भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपकी जो साथ संगत है वो बिल्कुल मिलजुल के जुड़ जाएगी। It'll become part of the performance. It'll sound like one single performance क्या happening. बात है, क्या बात है। मैं ये ये बात मैं छोटी सी मैं बोल रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा शब्द में एंड कितना आसानी से आप यू आर एक्सप्लेनिंग दैट, भावनाओं के साथ, लाइक आप दो सोल एक हो जाता है स्टेज में। करेक्ट, तो इसका, एब्सोल्युटली इसके लिए क्या डू यू थिंक दैट ओनली तालीम फ्रॉम योर गुरु or any special kind of practice? Because most of the time in India, maybe you get a proper green room sometimes to relax little bit, तानपुरा को देख ले तबला बांध के लिए, and sometimes you don't get any proper room, you just go on to the stage, and वो जो मनसंजोग होता है, जो concentration होता है, वो कैसे आप करते हो? like it's not आप जिस तरीका से आपने समझाया, क्या it has to be done, बट इसका अंदर का रेसिपी क्या है वो आप थोड़ा बताइए, तो लोग सुनेंगे ऐसे ही बात। ये रेसिपी जो है, ये खाने के रेसिपी जैसे नहीं है जो 1-2 घंटे में बन करेक्ट, जाएगी। करेक्ट, ये रेसिपी कई सालों की रेसिपी है। यस। और जो कलाकार, जो तबला वादक अच्छा अकम्पनिस्ट, साथ संगतकार बनना चाहता है गाने के साथ, करेक्ट, तो अगर वो गाने के माहौल में नहीं है, उसको घर में गाना सुनने नहीं मिल रहा है, गाने के संस्कार नहीं हो रहे हैं, तो अच्छे अच्छे गायकों के साथ उठना बैठना करके वो संस्कार करा लेने चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि यस। क्योंकि साथ संगत करना ये सिखा के नहीं आता है, ये संस्कार की बात है। अभी आप देखिए, छोटा बच्चा घर में बड़ा होता है, करेक्ट, घर में बड़ा होते 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 एक दिन भाषा बोलना शुरू कर देता है। एब्सोल्युटली। तो हम लोग उसको बिल्कुल भाषा सिखाते नहीं है कि इस तरीके से बोलिए, उस तरीके से बोलिए, हम बाहर जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब सेंटेंसेस सिखाते नहीं है। बड़ा होते होते भाषा जो है वो संस्कारों से ही सीखता है बच्चा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये संस्कारात्मक है, साथ संगत करना ये संस्कारात्मक है। विद्या
गुरु से लेनी है, लेकिन उस विद्या को हम संस्कारात्मक तरीके से साथ संगत में किस तरह से उसको, उस विद्या को इस्तेमाल करेंगे, ये संस्कारात्मक है। इसलिए बहुत गाना सुनना जरूरी है, बहुत गायकों को सुनना जरूरी है। गाने के परफॉर्मेंस में, एक ख्याल के परफॉर्मेंस में, ख्याल में क्या क्या स्टेजेस होते हैं जिसमें से परफॉर्मेंस गुजरता है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि ख्याल को पहले आलाप हो, उसके बाद ख्याल शुरू होता है, तो ख्याल भरते कैसे हैं, भरते भरते ख्याल भरते भरते आवर्तन को मुखड़े को लेकर के कैसे वो ख्याल को भरना चलता जाता है आगे, उसकी बढ़त कैसे होती है, फिर बोल बनाओ कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, बोल तान क्या होता है, तान क्या होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप जिनके साथ बजा रहे हैं उनका म्यूजिक जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपका अकम्पनीमेंट अनुकूल होगा। क्या इसीलिए बात, ईयर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और संस्कार ईयर ट्रेनिंग से होता है। क्या संस्कार क्या ऐसे, क्या बात, संस्कार इज नॉट एन ओवरनाइट रेसिपी। ऑफ कोर्स, संस्कार इज समथिंग दैट विल टेक मे बी 10, 20, 30, 40 years। यस, लेकिन वो शुरू से एक शागिर्द को कराना चाहिए अपने आप पे, या गुरु को उस शागिर्द को ऐसे माहौल में, अगर उसको पता है कि उसके घर में गाना बजाना नहीं है, तो गुरु को अच्छे अच्छे गायकों का रिकॉर्डिंग सुनाना चाहिए, भाई इसमें ठेका किसने बजाया है, कैसे बजाया है, ख्याल के साथ शुरुआत में ठेका कैसे बजता है। सो आगे जा करके ख्याल भरते हैं तो कैसे, ठेके को एम्बेलिश कैसे करते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स शब्द ठेके के क्या बात, लेके ठेके को किस तरह से सटली, without disturbing the main framework of the ठेका, prefix and suffix of ठेके के शब्द को लेकर के किस तरीके से ठेके को एम्बेलिश करते हैं, किस तरह से भर सकते हैं। और मुखड़े पे आते आते कलाकार के साथ, गायक के साथ, उनकी आत्मा में जा करके उनकी आत्मा से जो म्यूजिक निकल रहा है, जो उसकी खूबसूरती निकल रही है, उसके साथ एकजुट कैसे हो के बजाना है। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपने अपने आप पर संस्कार कर लिए हैं, और संस्कार करने के बाद कई साल कलाकारों के साथ बैठ के बजाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस समय क्या समझना पड़ता है, कि किस समय क्या बजाना चाहिए, कितना बजाना चाहिए, हाउ, what to play, how much to play, and when to play. क्या बात, You have to answer these three questions. Otherwise, एब्सोल्युटली, over a period of several years, you have to, ये चिंतन करना है, you have to analyze, you have to think, and you have to keep playing. And as you get more and more experience with your sanskars as a platform, you finally begin to realize that this is what it should be one fine day. And that realization takes a pretty long time. And there is no shortcut for this. do you This think, is the only way. yes, absolutely right, how beautifully you explained, इतना अच्छा आपने इस बारे में बताया, जो ये इतना कठिन है और कितना आसानी से आपने बताया। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो यंग तबला वादक है, जो वोकल के साथ एकम्पेनी करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या वोकल म्यूजिक सीखना जरूरी है थोड़ा बहुत? आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर सीखते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा। अच्छा, बहुत 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 ज्यादा एडवांटेज होगा अगर सीखेंगे तो, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट, अभी ख्याल जैसे है, ध्रुपद जैसे ठेका संगीत है, वैसे ख्याल ध्रुपद जैसे ताल संगीत है, करेक्ट, ख्याल जो है वो ठेका संगीत है। हाँ, और आप ध्रुपद बिल्कुल ताल को चिपक के जाता है, बिल्कुल फिक्स्ड है, इसीलिए उसको करेक्ट, ध्रुव पद बोलते हैं। करेक्ट, क्योंकि ख्याल फिक्स्ड नहीं है, आप एक ही ख्याल तीन ख्यालियों से सुनेंगे तो अलग महसूस होगा आपको, क्योंकि उनको उस समय अलग तरीके से
फ्रेजिंग, उस ख्याल की जो बनावट है अलग तरीके से सूझ रही है। तो ये जो संस्कार है, ये अगर थोड़ा बहुत, अगर तबला वादक पहले से थोड़ा ख्याल सीख लेता है, अभी जैसे मुझे पिताजी ने बचपन से मैं जो कुछ मुझे संस्कार हुए, तो विलंबित एक ताल रख के ख्याल गाना ये सिखाया। क्या बात है। तो खुद भी डग्गे पे एक ताल विलंबित रख के पूरी तरह ख्याल गाते थे। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो ख्याल जो मैंने देखा है आपका वादन में, क्या है, sometimes it sounds like it's like a metronome, your tempo, it's like amazing, you know. ये कैसे आप, ये क्या प्रैक्टिस है, क्या कंसंट्रेशन है, कैसे आप रखते हो? एंड और इसके साथ ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, because you are a finest tabla player of for the instrumental also, everybody wants you. ये जो दोनों का जो बैलेंस है, मैंने आपको जो ग्रेट मास्टर है उनके साथ आपको संगत करने सुना है. आई एम रियली फॉर्चुनेट, आई हैव सीन हिम सो मेनी टाइम्स, आई हैव हर्ड योर रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग. Completely, sometimes it's sounds like completely different person when you are playing with Ajay ji. It's completely different when you are playing with other person, it's completely different when you are playing with sitar or sarad, completely different. ये आप कैसे, और ये आप बताएं. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको मैं पूछूंगा, ये थोड़ा बताइए. देखिए, पहली बात तो जहां मैं आपको समझा रहा था कि संस्कारों को, एक तबला वादक को वोकल म्यूजिक के साथ बजाने के लिए अगर वोकल म्यूजिक सीखता है, बहुत अच्छी बात है. नहीं सीख पाए तो सुन सुन के, मेरे कितने सारे शागिर्द हैं जो अच्छा बजाते हैं वोकल के साथ, उनके घर में गाना, कई सारे स्टूडेंट्स के घर में गाना नहीं है, लेकिन उनको संस्कार करवाए हैं. अच्छे अच्छे गवैयों के साथ बिठा करके उनका प्रोग्राम सुनना, उनके रिकॉर्डिंग सुनना, ख्याल में, एक ख्याल के परफॉर्मेंस में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं ये जानना, उसके साथ किस प्रकार ठेका बजता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीजें सुन सुन के एनालाइज करनी पड़ती हैं. जहां तक लय की बात है, अब एक तो लयदार होना, लयदार होना ये डेफिनेटली नेचुरल, नैसर्गिक, नेचुरल है. एक तबला प्लेयर की लय बहुत अच्छी से स्थिर होती है, किसी की उतनी स्थिर नहीं होती है. राइट. तो ये जो है, ये आंतरिक स्थिरता के ऊपर है. अभी जैसे विलंबित एक ताल है, आप विलंबित एक ताल की भाषा को मात्राओं के साथ आप एक बिल्कुल एक खूबसूरत पिक्चर की तरह विजुअलाइज करें, और वो पिक्चर चेंज ना हो. करेक्ट. क्योंकि वो पिक्चर चेंज होता रहेगा तो आपका ठेका इधर उधर होता जाएगा. तो कितनी बड़ी बात बोल दिया, क्या बात है. तो वो जो फ्रेमवर्क है, एक ठेका है और विलंबित है, और आप विलंबित एक ताल फॉर एग्जाम्पल, आप ताली खाली दे के ताल के स्ट्रक्चर को, ताल के क्रिया को आप फील नहीं कर सकते हैं, इतना विलंबित होता है. धिन, राइट. ट्रक, धिन. तो ये ठेके की भाषा को आपको फॉलो करते जाना पड़ता है सम तक, तो उसकी एक आकृति बनती है, एक आकार बनता है. और करेक्ट. वो जो आकार है, उस आकार को फर्मली स्थिर करना चाहिए अंदर. राइट. बिकॉज मैंने इसलिए पूछा आपको ये क्वेश्चन, that I have seen that fantastic tabla player, you know, when he's playing with instrument, it's fabulous. But when he's playing with vocal, थोड़ा टेम्पो लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है. मैं सीधा बात आपको बोल रहा हूँ, ये लगा तो I got a beautiful answer from you, जो विजुअलाइज करना, आंखों का विजुअलाइज सामने करना. और जो मात्राओं के बीच में, आपने बिल्कुल स्थिर लय कहा, मात्राओं के बीच में जो अष्टक है या लघु मात्रा है, करेक्ट. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भिन, ये सबकॉन्शियस में ये अष्टक स्थिर होना है. ये सबकॉन्शियस में अष्टक स्थिर चाहिए. Absolutely, absolutely. पहले Amazing. फर्स्ट क्वालिटी,
फर्स्ट पॉइंट, अष्टक स्थिर चाहिए, लघु मात्राओं का जो क्रिया है वो स्थिर चाहिए। उसके बाद जो ठेका है, ठेके की जो आकार बनता है, फिर वो स्थिर हो जाता है। फिर फाइनली वो सबकॉन्शियस में आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ फॉर्म, और उसके अंदर ख्याल को भी आप साथ में देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आखिर करना क्या, आनंद लेके बजाना है, Of course. मेट्रोनोम की तरह नहीं बजाना है, आनंद Of लेके course, बजाना है। of course, of course. I तो would like to ask you one question that ये जो विलंबित के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, so there is one small joke about विलंबित एकताल that some people they tell 26 बजाइए, कोई बोलता है 48 बजाए। इसके बारे में आपका थोड़ा राय मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे नहीं, एक्चुअली पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि 24 बजाइए या ये 48 होते हैं कि बजाइए। नहीं, ये होते हैं कि नहीं, आप बताइए। ये एक ताल को 12 ही लेकर है। मात्रा, एक ताल करेक्ट, 12 मात्रे का होता है, उसमें आप 48 और 24 कैसे बजा सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, आई एम उनका सो हैप्पी। उनका कहने का मतलब ये है कि और विलंबित करिए, उनका ये कहने का मतलब है। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन एब्सोल्युटली वो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और वे ऑफ सेइंग, मेक कीप इट वेरी स्लो, और विलंबित करिए। इसीलिए अब कहते हैं 48 का एक ताल बजाइए। एक ताल 48 का होता ही नहीं है, 12 ही मात्रे का होता है। absolutely right. Now I'm going to ask you another question that again I am so fortunate, but before that I want to thanks viewers. A lot of viewers are watching and they are questioning, but my apologies that because I can't do a lot of things together, so maybe it's not possible to answer all of your questions personally, but definitely thank you all for watching our show, and thank you again, Jogesh ji. I'm so happy and honored. And माय प्लेजर। my next question is because I witnessed you not only as a in audience, because मेरा सौभाग्य था, I was playing the harmonium and you are playing the laggi, it's like for the first time it came to my mind that आप जब लग्गी बजा रहे हो तो एकदम आंखों का सामने वो जो ताल का डोरा है, इट्स सो क्लियर दैट पूरा जी, फंदा एकदम आंखों का सामने आ रहा है। इसके थोड़ा आप मिस्ट्री बताइए तो यंग जनरेशन दे विल बी बेनिफिटेड। वेल सी, लग्गी इज एन एक्सप्रेशन, a style of playing with ठुमरी और दादरा एंड में, जो समिंग अप होता है। तो करेक्ट, समिंग अप में कुछ कुछ ऐसे ऐसे फ्रेजेस लेके निकलते हैं, थोड़े फास्ट पेस्ड होते हैं, करेक्ट, थोड़ी सी तैयारी का अंग होता है उसमें। करेक्ट, तो दो स्टाइल होते हैं। एक, कभी कभी द तबला प्लेयर of in the olden days has also there have been styles where they come to a lay, or rather increase it to a lay of their comfort, और उसमें फिर एब्सोल्युटली, हाँ लग्गियों के हाँ हाँ, वैरायटीज बजा के, ये एक करेक्ट, स्टाइल हुआ करता था एक जमाने राइट में। राइट राइट राइट, आज भी हो सकता है। अभी आप उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब को सुनेंगे पुराने करेक्ट, रिकॉर्डिंग में, करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, आप वो अपने श्रीमती शोभा गुरतू जी के साथ उन्होंने, मैं कई रिकॉर्डिंग्स है और भी लोगों के साथ बजाया। तो हाँ, लग्गी उठते हैं तो एकदम से अपने लय में आ जाते हैं, थोड़े से फास्ट लय में आके लग्गियों का प्रेजेंटेशन करके फिर तिहाई लेके फिर उसी ठेके पे आते हैं जहां पहले थे। राइट, तो ये एक अंदाज लग्गी बजाने का हुआ करता था और है। और कुछ कुछ, because what happens is laggi, if you limit it to one lay, if you limit it to one particular lay, that where ठुमरी is or दादरा is has finished, then उसके प्रकार दिखाना थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, क्योंकि अलग लय में आप अलग अलग एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं लग्गी के, है ना। अलग करेक्ट, अलग लय में अलग अलग एक्सप्रेशन लग्गी के दिखा सकते हैं। तो थोड़ा बजाते 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 फास्ट भी कर देते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली,
हर एक तबला प्लेयर का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। आई मुझे बचपन से ये संस्कार है अब्बा जी से, अल्लाह रखा खां साहब के तालीम से, कि एक बार लय में गाड़ लिया अपने आप को, वहां से हिलना नहीं चाहिए जब तक क्या कोई बात है। बोले नहीं तब तक। तो वो संस्कार बहुत बचपन से हुए। तो बस ठुमरी दादरा के साथ भी लगी, जिस लय में खत्म होती है और जिस लय में इशारा होती है उस लय से फिर हटना नहीं होता है मुझे। वो नेचुरली होता नहीं है कि बढ़ाऊं 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 और अपने लय में आ जाऊं। उसी लय में लगी कि जितने एक्सप्रेशंस में एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं करता हूँ। Yeah, we always get some mind-blowing expressions from you because दो प्रश्न मैं पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अब्बा जी का नाम लिया, तो हाउ वाज द रिलेशनशिप, गुरु शिष्य जो रिलेशनशिप आपका था, और अभी जो यंग जनरेशन, यंग डेज, नाउ फेसबुक व्हाट्सएप डेज में, आप वो उस जमाना भी आप देखे हो, अभी इस जमाना जी भी आप देख रहे हो, थोड़ा सा बताओ। क्या 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 आप क्या महसूस करते हो, क्या आपका अंदर का फीलिंग है? देखिए, वो जमाना और इस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं ये कहूंगा कि हम लोग बहुत खुशनसीब थे कि करेक्ट। हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास ना मोबाइल था, ना कोई गैजेट था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, ना हमको बोल लिखने के लिए अलाउड था। अब्बा जी हमें लिखने नहीं देते थे, हमको याद करना पड़ता था, पढ़ंत से याद करना पड़ता था। लिखना शुरू कर देंगे तो बहुत नाराज हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे। तो हाँ। तो हम लोग ऐसे सीखे हैं। बहुत चुनौतियों से हम पर बहुत चुनौतियां डाली गई एकदम से ऐसे, लेकिन हम लोगों ने उसका सामना किया। मेरे जनरेशन के जितने भी बहुत सारे तबला वादक हैं, वो अपने अपने गुरुओं से उन्होंने इस तरीके से ही सीखा होगा। और मैंने अब्बा जी के पास सीखते हुए, जैसे मैंने कहा कि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता था। इस वजह से रियाज करने के लिए बहुत समय, पूरा चिंतन करने के लिए, डूबने के लिए बहुत समय है, ऐसे लगता था। आजकल के जमाने में जिंदगी की गति बहुत ज्यादा तीव्र हो गई है। स्पीड करेक्ट। ऑफ लाइफ हैज बिकम abnormally fast, and that is why to pursue an art form like Indian rag sangeet is a big challenge for the young uh, artists, young budding करेक्ट। students of bright students of this art form. And because there are so many distractions, so much is happening around, so much is available at the tip of your fingers. यस, एब्सोल्युटली। So distraction is at the tip of your fingers. So आप कुछ भी या, टाइप करके कुछ भी देख सकते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और कुछ भी तो मतवाद आपका दिल में आए तो इंस्टेंटली यू कैन पोस्ट इट इन फेसबुक, वॉट एवर, मे एग्जैक्टली बी इट्स गुड और एग्जैक्टली बैड। इसलिए या मैं दो प्रश्न करूंगा आपसे। क्या डू यू एंजॉय द ये जो नाउअडेज जो चल रहा है, एंड डू यू हैव एनी sort of sorrowness in your mind about position of tabla players? Now, still nowadays, do you think that you are getting the proper recognition, and this sort of things I want to listen to you from of you? course tabla has the pedestal of tabla has gone Correct. miles up into the sky. I mean, in the field बहुत रिकग्निशन मिला है तबले को। और ये हमारे बुजुर्गों के कर्म है, मेरे Correct. उस्ताद उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के कर्म है, और भी उनके जनरेशन के जितने भी पंडित किशन महाराज जी, गुदय महाराज जी, सभी उन वादकों का कंट्रीब्यूशन इसमें है। उसके बाद के जनरेशन का भी कंट्रीब्यूशन है। जाकिर भाई, स्वपन दादा, अनिंदो दादा, कुमार दादा, इन Correct. सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Correct. और तबले को बहुत पॉपुलर हो गया है तबला इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। बहुत ज्यादा घर घर में बच्चा तबला बजाना चाहता है। Correct. तो आई एम एक्सट्रीमली दैट वे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे अगले जनरेशन में ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी हार्टनिंग।
and there's the future of tabla is incredibly bright. That's Uh, fantastic. We want some yeah, positive vibes from a 100%. person like you. And my second, the next question is, any memorable concert in your mind or memorable incident regarding this vocal music, if you would like to share. And who is your favorite artist? That's quite obvious. I know I don't want to pull your leg. I know, but yes, but the first Why? answer I want that. Any artist who sings a phenomenal concert on that day is my favorite artist. क्या बात, क्या बात, I've had phenomenal concerts with Rashid Bhai, with Ajay क्या बात, Dada, with Ullas Dada, क्या बात. with Ashwini ji, with I am on that day. ऐसा हुआ है कि ऐसे गा गए हैं कि ऐसा लगता है अरे यार आज क्या गाना हुआ कमाल का। आहा, आहा, आहा. तो ऐसे फेवरेट करके कहना बहुत मुश्किल है Absolutely क्योंकि right. कोई मेमोरी, कोई मेमोरेबल इंसिडेंट आप बताओगे तो लोग पसंद करेंगे. थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कुछ महल बना and end of the day you were very much satisfied. Anything you would like to share? well for अच्छा, me okay, there have been several memorable moments accompanying vocal music. For the first 16 years of my life, right from when I was very young, for 16 years I played with only vocal music, including yes, my father, Pandit Dinkar Kaikini, Pandit K.G. Ginde, Pandit yes, S.T.R. Bhatt, Pandit Bala Saheb Puchwale. I played with all of them, Pandit Sharad Chandra Arolkar ji, uh-huh. and so many others. I mean, so it's very difficult to single out an experience. I understand. But maybe one experience in 1986, I went to play with Pandit K.G. Ginde at Tansen Samaroh in Gwalior. Gwalior, yes. Yeah, and Pandit Pandit Sharad Chandra Arolkar ji was scheduled to sing on the last day, and there was he was requested to get his accompanist, and I'd heard his concert many times in my childhood, Just and I used just to a love second, it. just a Yeah, second. Samarda is Ah, here. yeah. কাকু শুনতে পাচ্ছেন? Can you hear me, কাকু? কাকু আপনি শুনতে পাচ্ছেন? কাকু আপনি শুনতে পাচ্ছেন? শুন- ও মিউট করা না, আছে. এখন শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে কাকু মিউট করা আছে আপনারটা. আমি just let me say send him a quick WhatsApp. He's connected to the audio. Now he can hear it. Can you hear? কাকু শুনতে পাচ্ছেন? না, he'll have to wear the headphones. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এই শুনতে পেলাম। ঠিক আছে, আমাকে 5-6 মিনিট অ্যালাউ করুন, আমি যোগেশজির সঙ্গে একদম শেষে চলে এসেছি। अरे जोगेश भाई अच्छे तो नमस्कार जोगेश भाई अच्छे, नमस्कार जोगेश भाई है तो मैं बैठ के सुन रहा है। आप बोलिए, मुझे तो कुछ बोलना है नहीं, हम सुनना है। नहीं ऐसी क्या बात है। কাকু আমার প্রণাম নেবেন, কাকু আমার প্রণাম নেবেন। চলো, হ্যাঁ আমরা ফেসবুক লাইভে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার I don't have any language to welcome you. Please accept my pranam and I'll come to you. चलो, Thank you, ये सब Jogesh ji. इतना अच्छा कुछ हो रहा है। बस हम भी सीख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बस ये सब है। चलो आगे चलो, हम भी। तो इस बहाने समर्था का दर्शन हुआ बहुत महीनों के बाद आपके वजह से। अरे तो थैंक यू फॉर दैट। It's so nice and I would like to ask you, Jogesh ji, जो मैंने देखा है क्या now I want to ask so anyway, you that I just want to complete that I was Tansen playing Samara, with Gwalior. I was playing with Ginde Saab, and then Sharad Chandra Arolkar ji asked me to play with him. Acha. And that was a big honor for me Of course. at that time in the 80s.
early 80s to get the honor of performing with such a phenomenal Gharanedar vocalist, and that he asked me to play with him. That was one of the very satisfying moments for me. That's absolutely fantastic, Yogesh ji, and you shared a beautiful memory of yours. And you know, it's so I'm sure that Jo sun rahe hai aaj, they are so lucky, and I am also very much lucky. I consider myself very much blessed to have you in my show. एंड में मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, that when you feel ये समय तो आया है that you are one of the most demanding tabla player in our country, सब लोग आपको चाहते हैं, तो how do you enjoy that particular moment? And मैं स्टेज में देखा कोई ऐसा नहीं है, एकदम calm and quiet, very polite एक आर्टिस्ट बजा रहे हैं, very smiling face, and how do you enjoy your fame? ये आप शेयर करो, because I don't for you are one of the I must say one thing, you are one of the legendary figure nowadays, and absolutely not. Of course it's your humbleness, I know that लोग आप एक जगह में अभी आया है क्या, मोस्ट डिमांडिंग, एंड जो देखिए ये सीरीज में आप लोगों का आशीर्वाद से जिन लोग आया है सभी ऐसा ही है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको जो हाउ डू यू एंजॉय दैट the best way to enjoy it is not to think about it. क्या बात क्या बात don't think about who's watching you, what they are thinking, and just be engrossed in the moment, in the musical moment, and enjoy the music by being one with whom you are playing, and live that moment musically as deeply as possible. That's my philosophy. क्या बात है, it's beautifully आपने बताया, and thank you so much. I really mean it's from my core of my heart that आप सामने नहीं हो, तो please accept my pranam, and I need your blessings. And viewers, I'm so happy. Thank you so much. That you know, first half with Yogesh ji. Hope you enjoyed a lot, and thank you. Now, with your permission, I'm joining to Samar Kaku. Please, I'm going to follow it on Facebook. Please, thank you. समर दा, इजाजत है। हमें छोड़ के मत जाओ, कुछ पिटाई करेगा तो तुम बचाना हमें। नहीं, ऐसा करेंगे तो मैं लंदन जाके देख लूंगा, चिंता मत करिए। Of course. क्या बात, I love this conversation. Thank you जी, thank you. Kaku, I'd like to, viewers, please forgive me, because I would like to exchange my thoughts with Samar Kaku with Bengali little bit, and then I'll translate to Hindi. Kaku हिंदी में भी बात करेंगे आप लोगों का साथ. And I would like to mention one very important thing in my life, that when I took music as a profession, that time it was a question mark that whether I could or not, whatever, that the big encouragement and guidance, the person from whom I got that time, you know, none other than Samar Kaku. কাকু, আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর আপনার কাছে কোনো ভাষা নেই। আপনি আমার জীবনে আমার বাবা যেরকম আপনি সেরকম, এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনি আজকে আমার এই শোতে এসেছেন, আমার প্রোগ্রাম নেবেন। হ্যাঁ, তোমার জন্য অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রইল। তুমি এত দূরে থেকে এত সুন্দর একটা কাজ করছো। আজ থেকে 25 বছর আগে ভাবিনি, বা 30 বছর আগে ভাবিনি তুমি এই হাওড়া ছেড়ে লন্ডন চলে গিয়ে এইরকম একটা সিচুয়েশনে এইরকম কিছু জিনিস তুমি করবে। সেই জন্য তোমাকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো না, অনেক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি মানে আশীর্বাদ দিন। আমরা আশীর্বাদ দেবার মালিক না, আমার গুরু সামনেই আছেন, আমার গুরুর ছবি, ওনার কাছে আমি তোমার এই প্রার্থনার ওইটা জানালাম, আবেদন উনি করবেন সবাইকে।
আমার মনটা ভরে গেল কাকু। मैं पहला जो सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जी। थोड़ा सा आई विल स्पीक हिंदी में, हिंदी और बेंगली। সমস্ত মানুষ যখনই আপনার নামটা শোনে, ফার্স্ট কথা যেটা বলে, গোল্ডেন হার্ট, সমরদার মতো মানুষ হয় না। এই যে কথাটা, যে কোনো মানুষ, আমি যে কোনো লোককে দেখেছি, প্রথমেই যখন আপনার নামটা শোনে ফার্স্ট কথাটা হচ্ছে এই কথাটা। এই জিনিসটা আপনার কেমন লাগে? हाउ डू यू फील? कैसे लगता है जो लोग आपको बोलते हैं क्या उन जैसे इंसान नहीं होता है? दैट द सेम थिंग आई हैव हर्ड अबाउट माय गुरुजी पंडित अरुण भादुरी जी। द सेम थिंग पीपल ऑलवेज एक्सप्रेस फ्रॉम देयर हार्ट, द समर्दा का जैसा इंसान नहीं होता है। थोड़ा सा बताइए। देखो, ये बात मैं सही बताऊं तो ये है, ये मेरा क्रेडिट नहीं है। जो मुझे ये बात कह रहे हैं वो उनका क्रेडिट है। क्योंकि লোকজন বলছে সেটা ওদের ভালো মানসিকতার জন্য। ওরা বলছে যে সমরদা ভালো, আমি ভালো না। ওরা ভালো বলে সবাইকেই ভালো বলতে শিখেছে। তাই জন্য ওরা सब लोग ने यही कहते हैं जो ये आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी अच्छा नहीं, वो अच्छा है इसीलिए लोगों को अच्छा कहते हैं। ये मेरा कुछ नहीं है इसमें, सब बाकी लोगों का है। ये मेरा मेरा मैं तो क्या बोलूं, इतना पोलाइटनेस यू हैव, और दिल की बात आपने बोल दिया। क्या जो आपको अच्छा बोलता है ये उन लोगों का क्रेडिट से। थैंक यू सो मच काकू। कितना कुछ सीखने को मिला ये बात के ऊपर। अ, जो मेरा सब्जेक्ट है, लाइक जो हम देखते हैं, मैं बचपन से देखे हैं क्या, आप जब कॉन्सर्ट में जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है क्या मेन आर्टिस्ट कौन सी राग गाएंगे, कौन सी ताल गाएंगे। एंड समटाइम्स आपको एक ग्रीन रूम मिलता है, समटाइम्स यू डोंट गेट ए प्रॉपर ग्रीन रूम, एकदम स्टेज में आप चल जाते हो। तो हम लोग जो सुनते हैं, जब मेन आर्टिस्ट आलाप शुरू करते, राग का औचार शुरू करते, एंड मैं वोकल म्यूजिक की तरह ही रहूंगा, बिकॉज एज यू नो दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वोकल म्यूजिक। तो वो शुरू से ही फर्स्ट धा और धीन से हम लोग जो महसूस करते हैं क्या, आपका अंदर में भी एक कलाकार गा रहे हैं। यू आर नॉट ओनली प्लेइंग द तबला, यू आर ऑल्सो सिंगिंग एंड पार्ट। एक साथ दो अंतरात्मा एक हो गए हो। ये बात का आप थोड़ा बताइए। देखो, ये मैं सही बताऊं तो ये ऐसा है, जो बड़े लोगों का सुनना, हमने इतना साल हो गया जो मैं तबला प्लेइंग सबका साथ कर रहे हैं, और बड़े लोगों का साथ साथ करना, जो हमने, जैसे मैं बहुत लाकी हूँ जो मैं आईटीसी एसआरए में एकदम शुरू में मैंने ज्वाइन कर लिया। इसीलिए क्या है, जितना भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आईटीसी एसआरए में था, जो अभी एक भी नहीं है, जैसे हमारा, हम मैं जी कहते थे, हीराबाई बर्जेकर जी, यस, निगितिबुआ सान्नायक जी, निसार हुसैन खां साहब जी, उस्ताद लताफत खां साहब जी, तो इश्तियाक खां साहब जी, ये और बड़े बड़े लोग, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, जो हमारा सभी हमारा गुरु है। तो देखो, ये इतना लोगों का साथ हमने बैठने का मौका मिला। इसी में कोई जो तबला बजाता भी नहीं, वो भी इन लोगों का सामने बैठा रहे 1 घंटा 2 घंटा कुछ सालों तक, तो वो भी कुछ सीख जाएंगे। ये क्या मेरा बात। राय है। तो ये साथ भी तुम्हारा गुरु है, वो या लोग नहीं जानते हैं, निदान बाबू का। वो या भी या इतना गुणी है, जो साथ में बैठो 2 घंटा टाइम पास करो, कुछ सीख के घर जाओ। तो बड़े लोगों का साथ साथ नहीं करोगे तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। ये बड़े लोगों से ही आता है, जो इनहेल कर लेते हैं। हम लोग बच्चे थे उस टाइम, अब तो थोड़ा सा उम्र भी हो रहा है, तो आप महसूस हो रहा है जो वो लोग थे इसीलिए हम हैं। और वो महसूस होने के लिए 40-50 साल चला जाता है, जो जानने के लिए 50 साल तो पहले करो, और फिर सोचो जो 50 साल पहले क्या था, आज तुम क्या कर रहे हो, वो उसी का नतीजा है। तो क्या ये बात। मेरा ख्याल है, ये मेरा सोच है, जो बड़े लोगों का साथ नहीं करो तो होना बहुत मुश्किल है। क्या बात। यू नो, इट्स
सच ए माइंड ब्लोइंग आंसर, इतना विनम्रता से आपने बताया। और मैं और थोड़ा डीप जाना चाहता हूं, क्या आप क्या इसको क्या ओनली फ्रॉम गुरुज तालीम, और आपने खुद को ऐसे बनाया सोच समझ के? बिकॉज यू नो एवरीबॉडी नोज दैट आप भोकल म्यूजिक में आप जो संगत करते हो, it's like fabulous. It's like people compared you. You know, I have heard people compared you after Kiramatullah Khan Sahab, Samuel Bose ji. You are such an amazing, mind-blowing accompanist for the vocal music. ये कैसे, ये सिर्फ आप गुरु का तालीम और कुछ आप सीक्रेट रेसिपी आप बताइए। देखो, ये तुम जिन लोगों का नाम ले लिया, तो ये एक टाइम का भगवान थे, हम लोग उनको सुनते थे, सीखते थे। ऑफ कोर्स। मेरा जो ख्याल है, ये गुरु का आशीर्वाद, भगवान का देन ये ना हो तो ये तुमने जो बोला ये नहीं हो सकता है। सिर्फ सीख के बहुत कुछ नहीं होता है, सीखने का बाद भी कुछ है जो किसी को सिखाया नहीं जा पाता है, तो वो है म्यूजिक। तबला बजा लिया, बहुत टुकड़े बजा लिया, बहुत चक्रधार, पढ़न, कायदा, रेला, बहुत कुछ बजा लिया, वो तो है, तबले का सब्जेक्ट में है, वो तो सब लोग बजाते हैं, सब अच्छा है, लेकिन बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात मेरा जो ख्याल है, जो उसके ऊपर भी कुछ है, वो है म्यूजिक। करेक्ट। तो ये बड़े लोगों जैसे तुमने बोला, उस्ताद किरामतुल्लाह खां साहब, हमारा इधर का उस्ताद आफाक खां साहब इधर का नहीं थे, लेकिन उनका जो एकम्पनीमेंट, पंडित श्यामल बोस जी का, ये सब जो हमने छोटा उम्र में सुन के आए, और जो इशारे में आके बड़े बड़े लोगों का साथ मौका मिला साथ देने का, तो ये दोनों सब मिल के एक म्यूजिक बनता है। तो मैं नहीं सोचता हूँ जो मुझे म्यूजिक आता है, मैं तो अभी भी सुनता रहता हूँ सबको, बच्चे लोगों का भी, सबका पास कुछ ना कुछ गुण है, और जो नाम है वो बेकार गुण कभी गिनती में नहीं आता है। तो इसीलिए जिनका नाम है उसका तो गुण है, इसीलिए नाम हुआ। तो ये सब लोगों से सीखने को मिलता है। अब ये भी नहीं है जो सब बड़े लोगों से ही सीखने को मिलता है, जो 2 साल भी गाना बजना करते उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब मिला के सबका ऊपर है गुरु का आशीर्वाद। गुरु का बिना आशीर्वाद कुछ नहीं कर कहोगे, एक कदम भी नहीं चल सकते गुरु के बिना आशीर्वाद। ये मेरा राय है। वंडरफुल वंडरफुल काकू। मेरा अगला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव विटनेस्ड दैट यू नो half an hour 40 minutes you are playing Bilambit Ektal, same weight, same bol bani, and it's like a magic. It's like a people will think that machine is producing the sound. इतना मनसंजोग कैसे आपको आता है? जो I think it's really really hard. ये sometimes जो आपने आप का मैंने accompaniment सुना है, ये आप और खुद का एक स्टाइल बना दिया आपने। आपका ठेका कोई 2 मिनट सुने तो बता देगा ये समरदा बजा रहे हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे किया है? ये भी तो वही है ना, जो सुनने वाला है उनका कान इतना तगड़ा है, सुन के समझ जाता है, वो तो है। लेकिन देखो, तुमने जो बोला, एक टाइम जैसे जब मेरा 12 साल 14 साल उम्र था, उस टाइम जो कलकत्ते में घर घर पे एक सभा होता था, सोमवार को इनका घर, मंगलवार को इनका घर, बुधवार को इनका घर, जैसे हम उसी टाइम पापा मुझे हाथ पकड़ के इनका घर उनका घर से लेके जाते थे, तो हम बड़े लोगों का गाना बजना म्यूजिक उधर सुनते थे। हम कभी कभी मौका मिलते तो हम भी तबला लेके बैठ जाते उन लोगों के साथ। जैसे हम कह रहे, एक अब सब लोग जानते हैं पंडित सत्य किंकर बंदोपाध्याय। Yes, I have heard old recordings. देखो, अभी बहुत लोग सारे नहीं मालूम, उनका बेटा है पंडित अमीर रंजन बैनर्जी, वो भी क्या गाते हैं, अभी 94 95 उम्र में
जैसे Of course. गाने वाला है नहीं। तो Of course. उनका पापा का साथ मैं जब सोमवार को बैठते थे, हम अच्छा हर सोमवार को मैं उनका साथ बजाते थे। अच्छा क्लास में भी कभी कभी जाते थे। अच्छा तो क्या होता, हमने मान लो दिन टेक दिन धा धागे ते दे के ते तीन ये बजा रहे, तिरकड़ तिकदा तिरकड़ दिन, ये जब कहे ना तो उनका पास एक छोरी होता था, तो वो कहते थे एक ऐसे छोरी से मारूंगा ना तो तुम्हारा ये कुरकुर 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 करना बंद हो जाएगा। क्या बात है। तो वो देखो, हम लोग उस टाइम चुप हो जाते, जो उन्होंने डांट दिया बहुत जबरदस्त। फिर कभी कभी होता तो उन्होंने बहुत अच्छा सितार भी बजाते थे, तो सितार हाँ में तबले का बोल वो भी होता था उस टाइम पे। तो वो कहते बोल सिखा दिया, जो हम भी बजाएंगे तुम भी हमारा साथ बजाओ। तो वो भी एक बजाने का मौका तो जरूर मिल जाते थे, एब्सोल्युटली लेकिन वही सीखने का है। और इधर में भी एसआरए में भी इतना बड़े लोगों का साथ दिया ना, जो सामने बैठो और क्या तुम कुछ कुरकुर कुरकुर करो तो ठेका में, तो हो सकता है एक झापड़ मार दे। तो उस करेक्ट टाइम उस जमाने में झापड़ मारने वाला भी पंडित लोग उस्ताद लोग थे, आज वो भी नहीं है। आज ठीक किसी को झापड़ मारे, एक डंडा पिटाई करे, तो दूसरा दिन वो पुलिस आ जाएगा, ये कोर्ट में फाइल कर देंगे जो हमारा बेटा को मार डाला। तो एक एक वो जो टाइम था ना, वो टाइम हमने जो देखा, जो मेरा 50 साल पहले, हाँ तो सही में वो कुछ गोल्डन टाइम था। ऑफ जो कोर्स इतना बड़े बड़े लोग आज तो देखो, ये कहते ना जी बड़े पेड़ झुकता है, ये सब बहुत हम लोग कहानी सुनते। तो करेक्ट वो सब ऐसा ही था, जैसे हमला बॉट बिखो जैसा कहते, करेक्ट फिर कुछ करेक्ट भी। तो ये लोग ऐसे था, उन लोगों के साथ पहले भी बोला फिर भी बोल रहा हूँ कि उन लोगों के साथ साथ दिया, इसीलिए हमारा ठेका जो भी है ये सारे में आके फिर पुराना ये उस्तादों का साथ बजाते बजाते एक अंदाज बैठ गया। और करेक्ट अभी भी वो याद आता है, जो ठेका में कुछ ऐसा गड़बड़ करूँ तो वो नहीं है अभी, लेकिन उसका पिटाई का याद आता है। क्या बात क्या बात। एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू दैट यू नो आपने वो जमाना भी दिखा है, हाँ कैसा था उस्ताद और पंडित लोग, और अभी ये फेसबुक व्हाट्सएप जमाना भी देख रहे हो, यंग स्टार्स को देख रहे हो। एंड यू नो बिकॉज यू आल्सो ऑर्गेनाइज कॉन्सर्ट, आपका प्रतिष्ठान है एक। एंड I'd like to share a good news with all the viewers. You know, in the cyclone, the Sangeet Piyasi organization donated a lot of things in Calcutta and in throughout West Bengal to the musicians. And you know, ये जो जमाना आप देख रहे हो, ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये देखिए, ये कोई भी चीज खराब नहीं है, क्योंकि देखिए हर 10 12 15 साल में कुछ चेंज होते रहता है। तो एब्सोल्युटली अभी देखो, जिस जमाने पे हम लोग गाना बजना किया, हम लोग 4 बजे 5 बजे निकल जाते तो खेलने के लिए, छोटा छोटा ग्राउंड होता था, उधर खेलने के करेक्ट लिए जाते थे। करेक्ट करेक्ट और 6:30 बजे 7 बजे घर आना पड़ता है, नहीं तो वही उसी एरिया का कोई अंकल पिटाई करेंगे, जो अभी तक तुम एब्सोल्युटली रास्ते पे हो, ये जाओ ये घर जाओ। तो वो अभी नहीं है। अभी देखो ये जमाना में मोबाइल सब कुछ है, घर पे छोटा छोटा फ्लैट होता है, 800 करेक्ट स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट, उधर सब लोग रहते हैं। बच्चा क्या करेंगे, खेलने के लिए जगह भी है नहीं, कहाँ खेलने के राइट लिए जाए। इसीलिए मोबाइल है, मोबाइल में बहुत कुछ ऑप्शन है, लेकिन तुम कौन सा चुनोगे ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड है। तो बहुत सारे मोबाइल से अच्छा भी है, बहुत बुराई भी है। तो लेकिन करेक्ट बुरा अच्छा दोनों है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो दूध भी है, दारू भी है। कोई दूध पी के राइट दारू पीता है, कोई दारू राइट बेच के दूध पीता है। तो दोनों अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है। तो करेक्ट आजकल जो बच्चा, मैंने देखो ये लॉकडाउन का टाइम में, हम सही बताओ 5 महीना हो गया, राइट 22 मार्च उधर से ये शुरू हुआ था। राइट तो आज हमारा 22 अगस्त हो गया, 5 महीने से ज्यादा। राइट तो उस टाइम क्या करें, प्रोग्राम पे नहीं जाना है,
घर पे बैठना है, कोई घर पे नहीं आ सकता है, गेट से एकदम बंद है, किसी को आने नहीं देता है, तो हम क्या करें? तो हम कंप्यूटर या मोबाइल लेके हम फेसबुक देखते हैं। राइट। तो तुमको क्या बोलूं, मैं फेसबुक का बहुत बड़ा भक्त हो गया, क्योंकि दैट्स गुड। क्योंकि बहुत सारे जिनको पहले देखा नहीं, सुना नहीं, जानते नहीं थे, क्योंकि वो करेक्ट स्टेज पे नहीं आते, स्टेज पे बड़े करेक्ट बड़े लोग आते, करेक्ट। लेकिन बच्चों में भी इतना अच्छा है जो सुनकर हैरान हो जाता है, अरे इतना इतना वाह अच्छा। वाह तो कभी मुझे भी मौका मिले वो बच्चा को मैं बुलाऊंगा। वाह। क्योंकि वंडरफुल। हमने देखा नहीं कभी, हम तबला भी ऐसे सुना, गाना भी सुना, और सितार सरोद सब सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट भी जो हम कभी देखने के लिए नहीं जाते थे, जैसे रिसाइटेशन और बहुत सारे कुछ है, छोटा छोटा नाटक, ये भी सब फेसबुक में आता है। यस तो यस। बहुत बहुत मजा आता है उसमें देखने के लिए। लेकिन देखो, हर मामले में कुछ परसेंटेज है बहुत अच्छा, कुछ परसेंटेज है बराबर, कुछ है थोड़ा लो, कुछ है एकदम बेकार। तो ये तो हाथ में एक टाइम में होता था ना, ऐसे कहते देखो ये म्यूजिक रेडियो में होता तो हम बंद कर सकते, तो ये तो राइट। प्रोग्राम पे क्या करें। Absolutely amazing. Thank you, viewers. Thank you that it's you know, lot of shows are going, but still you are watching our shows, and we are delighted to have Pandit Samar Sahaji here, and we are conversing and we are learning a lot of things from Pandit ji. Kaku, ami next question मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ memories that like a great feelings you had with some artist, कोई concert का memorable concert in your life or something, आप थोड़ा share कीजिए please. ये भी तो है, बहुत दिन से बजा रहा है ना, तो Yes. जितना दिन से बजा रहा है तो इतना कुछ मेमोरी इसमें आ गया ना। अभी वो जैसे हार्ड डिस्क में लोड का कैपेसिटी भी जितना है, तो मेरा कैपेसिटी फेल हुआ और हार्ड डिस्क भी क्रैश हो गया, तो क्या मेमोरी बात, इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन तब भी हम, तुमने जब पूछा, please. एक बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है, थोड़ा Correct. सोच के ही बोलना पड़ेगा, लेकिन ये गाने बजने का कुछ है नहीं, लेकिन अच्छा अच्छा, कुछ मजेदार है। हाँ हाँ बताइए please. ये होगा 25 साल पहले, अच्छा न्यू जर्सी में, अच्छा यूएसए। अच्छा। हाँ। एक मंदिर मंदिर में प्रोग्राम था मेरा, अच्छा तो गए, और मंदिर वो बहुत ऊंचाई में, पहाड़ का ऊपर। अच्छा। तो प्रोग्राम हो गया, तो हाँ। हमारा दोस्त शागिर्द हम्म, वाशिंगटन से आए, अच्छा। बाल्टीमोर वाशिंगटन से, हाँ। और दो शागिर्द आए उधर ही, एक जगह है लेकिन 2 घंटे का रास्ता है। अच्छा तो हमारा साथ वो ज्योति गुहा भी है, पंडित ज्योति गुहा हारमोनियम अच्छा। प्लेयर। ज्योति काकू, यस यस। हाँ, तो वो भी मेरा साथ जाने वाला ही था उधर। तो अच्छा। हमारा एक दीदी का घर, हम्म 5 लोग आए थे गाड़ी लेके, हम्म जो हम्म। हमें उधर ले जाएंगे, और सब लोग उधर ही जाएंगे। हाँ। तो न्यू जर्सी उसी एरिया, वो भी न्यू जर्सी में ही है, लेकिन 2-2.5 घंटे का रास्ता है। Sorry, I'm तो interrupting. I got a very beautiful message for you. Samar Babu is talking from his heart, a genuine, devoted person. সন্দীপ বসু মল্লিক খুব আমাদের খুব প্রিয় মানুষ, একজন লন্ডনে থাকেন, খুব গান টান করেন। হ্যাঁ, তো থ্যাংক ইউ সন্দীপ কাকু। কাকু ইজ লাইক দিস তুমি অ্যান্ড তুমি সন্দীপ কাউকে বলে এটা উল্টোটা, ওনার জন্য কখনো দেখা হলে ওনার সাথে কথা হবে। ও হুম। নিশ্চয়ই সন্দীপ কাকু বাংলা বাঙালি, বাংলা ভালো বোঝেন, খুবই হ্যাঁ, মিউজিক্যাল না। বাসু আমি বলেছে। একজন ইয়েটা মেসেজটা এলো, জাস্ট আই এম শেয়ারিং। ইয়েস কাকু, প্লিজ हाँ, কন্টিনিউ। तो क्या हुआ, मेरा दोस्त सागरेब, वो सोचा गुरुजी उनका साथ जाएंगे। फिर दूसरा सागरेब सोचा गुरुजी शायद उनका साथ चला जाएंगे। वो सागरेब का तुम भी एक दो को जानते हो, मुनीर हुसैन है, हाँ वाशिंगटन में हाँ हाँ, रहता है मेरा ये ये सागरेब। ये 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 हाँ, ये और वो उसका भाई है, वो लोग सब गाड़ी लेके आए थे। और वो हमारा जो दीदी है, वो सुमित्रा दीदी है, तो अच्छा उनका घर हम सब जाएंगे। अच्छा तो सब लोग, ज्योति भी जाएंगे हमारे साथ। अच्छा। तो ये सोचा, हम उस टाइम बहुत सिगरेट मिगरेट पीते थे, अभी तो छोड़ दिया,
अब साधु बन गया। तो उस टाइम क्या हुआ, वो छोड़ के चला गया, मैंने देखा वो गया मेरा सामने से। फिर वो सोचा उनका साथ जाएंगे, वो भी अच्छा। निकल गया। हाँ। फिर ये सोचा उनका साथ जाएंगे, ये करते करते 5वां गाड़ी निकल गया उधर से। माय और गॉड। गाड़ी उधर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं। एक आदमी के साथ मैं बात कर रहा था, तो वो भी गाड़ी उधर ही खड़ा होके, और मैं सिगरेट पी रहे थे, बात किया, फिर वो भी निकल गया। तो अभी वो पहाड़, वो एरिया में एक भी गाड़ी है नहीं। मैंने तो, और अंधेरा है, सब बत्ती बत्ती भी बंद हो गया। हाँ। एकदम क्या तुमको बोले, जो कुछ हमारा हाथ भी मैं नहीं देख सकता हूँ, इतना अंधेरा है। माय और गॉड। ठंडा, तुम सोचो मत कितना ठंडा था। मतलब वो 0 डिग्री ऐसा कुछ था। अच्छा। तो मैंने एकदम परेशान हो गया, मैं अभी क्या करूं, कहाँ से जाऊं, वो पता भी नहीं है। तो मैंने खड़ा है, और जेब में सिगरेट है नहीं जो सिगरेट पिए, क्योंकि वो सब मेरा जो स्टूडेंट है उनका पास दे दिया, जो तुम हाँ। रखो बैग में सब। हाँ। एक कुर्ता पहना हुआ है, हाँ। पैजामा कुर्ता, शॉल भी नहीं है, कुछ नहीं है। गर्मी लगा स्टेज का निकलने के बाद। मोनीर और हुसैन सुन रहे हैं, मोनीर मोनीर हुसैन इज वाचिंग, मैसेज मी अच्छा, जस्ट। उसको मालूम है ये किस्सा। तो जो भी है, हाँ। तो वो क्या हुआ, मैं, वो लोग सब निकल गया और हाँ। मैंने परेशान हो रहा है। फिर देखा हम गुरु का नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे, बचाओ, आज बचा दो, आज बचा दो, क्या गलती किया मुझे मत पता नहीं, मुझे अरे क्या बचाओ, मुझे बात। बचाओ। तो ऐसे करते करते 45 मिनट, 1 घंटा हो गया। तो देखा नीचे से एक गाड़ी ऊपर आ रहा है। तो अच्छा। मैंने फिर डर गया, जो वो गाड़ी क्यों। तो फिर देखा आके, फिर ऊपर आके मेरा सामने झट से ब्रेक लगाया। वो पूछा मुझे, समरदा आप क्यों इधर खड़ा है। तो मैंने बोला, देखिए हमें लेने के लिए 5 गाड़ी था, लेकिन वो एक एक करके सभी सोचा उनका गाड़ी में गए, अच्छा। तो चला गया, मैं अकेला पड़ गया अभी। तो उस टाइम मेरा हाथ पर, मैं बात भी नहीं कर सकते, ऐसा हो आई गया। अंडरस्टैंड। तो ये वो आदमी क्या बोला मुझे, समर्थ हम जब, वो मेरा ही वो प्रोग्राम है, वो जितना हाँ। कारपेट मारपीट था वो सब लेके, मेरा मिसेस को, बच्चा को लेके हम घर छोड़ के आए, क्योंकि हाँ। मैंने देखा आप खड़ा है, तो एक बार वॉच करने के लिए आए जो अब है क्या नहीं। हाँ। तो मैंने बोला, उस टाइम मुझे लगा जो एकदम वेंटिलेशन से निकल के हमने आ गया गरम করে নিন। बाहर, ओके। वेंटिलेशन से बाहर आ गया ऐसा लगता है। माय तो गॉड। फिर गाड़ी में बैठे, हम बात भी नहीं कर पा रहे। तो आदमी ने बोला, मेरा नाम भी समर शाह है। अभी वो सुन रहे, तो मैं, इतना अच्छा है जो वो भी कह रहे हैं जो मेरा नाम भी समर शाह है, आप आज मेरा घर पे रह जाइए, कल आपको जहां जाना है छोड़ूंगा। क्या और वो बात। लोग 2 घंटा बाद, 2.5 घंटा बाद घर पहुंच गया। हाँ। पहुंच के देखा समरदा नहीं है, तो सब आई लोग अंडरस्टैंड। परेशान। रात को खाना वाना भी नहीं खाए, सब फोन माय वोन गॉड। किया। तो मैंने एक जगह पे, तेजिन भी मालूम है, तेजिन को, तेजिन, पंडित अच्छा अच्छा तेजिंद्र अच्छा। नारायण मजूमदार, अच्छा 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 तो अच्छा। किसी का घर था। तो मैंने फोन करके फिर उन्हीं का घर गए। जाने अच्छा। के बाद हमने बोला ना, 2 घंटा हम बात नहीं कर पाए किसी से ठीक माय से। गॉड। इतना, एक मतलब क्या बोले, वो जो, जैसे हमने बोला ना, वेंटिलेटर से हम बाहर आ गया। आई अंडरस्टैंड। तो आई अंडर ऐसे फुल्ली फुल्ली। ऐसे एक, ये भी एक म्यूजिक करने के लिए ही गया, ऑफ कोर्स ऑफ और कोर्स। उसी में ये हुआ। आई एम हाँ, और श्योर वी। म्यूजिक का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना साल बजाने के बाद तो कुछ ना कुछ है ही। तो मेमोरी डेफिनेटली। वही, एक अभी याद आया। तो ये लोगों को मालूम नहीं, तो जो सुन रहे हैं उन लोगों को, तेजन भी सुन रहे हैं तो तेजन को भी मालूम है ऑफ जो कोर्स ये ऑफ किस्सा कोर्स हुआ था। ऑफ कोर्स और ये ऑफ हमारा कोर्स। और एक दीदी है न्यू जर्सी में, रूबी मल्लिक, तो उनको भी मालूम है, उन्हीं का घर फाइनली हम गए थे। सब लोग जानते हैं अच्छा म्यूजिक का इन लोगों अच्छा को। अच्छा 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 अच्छा। ये आज भी मुझे लगता है वो एकदम, देखो ऐसा लग रहा है जो कुछ हो रहा है, उस दिन का दैट्स याद आ रहा है। that's wonderful. मेरा next question, it's a little bit technical things in विलंबित एकताल। हम हम लोग ऑलवेज ये बात सुनते हैं क्या, आप 26 बजाइए, 48 840 बजाइए। ये जो एक कंफ्यूजन है, इसको आप कैसे देखते हो, लाइक व्हाट इज योर फीलिंग्स। आई एम श्योर दैट मेनी वोकलिस्ट आल्सो टोल्ड यू, आपको भी बताया क्या 26 बजाओ, क्या 48 बजाओ। ये आप कैसे देखते हो ये बात। देखो, ये तो मुझे लगता है ये बेकार बात है।
बिल्कुल बेकार Absolutely. है। Yeah. तो देखो, दादरा 6 मात्रा का है, Correct. तो दादरा क्यों 24 नहीं हुआ? Absolutely. Absolutely. कारवा 8 मात्रा का है, झापतल 10 मात्रा का है, तो नहीं देखिए, कहते 40 मात्रा का झापतल बजाओ, देखिए, तीन ताल को 64 नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक नहीं ताल को बोलते। बारे में बोलते हैं। करेक्ट। तो ये क्या है, मेरा जो सोच है, विलंबित ज्यादा से ज्यादा गाने वालों के लिए वो हाँ। विलंबित एक ताल वो ज्यादा यूज होता है। सब राइट। घराना में होता है, लेकिन वो भी डिफरेंट है। हाँ। घराना का वो जो देखोगे तो देखो, सब लोग उतना जो जो 48 कहते हो तो बेकार बात है, 48 नहीं है, स्लो टेम्पो है। राइट। मान लो तुम्हारा 12 सेकंड में 12 मात्रा, दिन दिन दागे, और 4 12 48, करेक्ट। उसमें एक ताल, तो वो क्या करेक्ट। है, धीन टक टक, धीन करेक्ट। टक टक, इसके लिए 48 कहते। और झुमरा भी 46 लोग कहते, 56 झुमरा बजाओ, वो भी अच्छा। वही है, वो भी वही अच्छा। है, लेकिन लेकिन हमने सुना नहीं जो 40 मत्ते का झपतले बजाओ और 64 मत्ते का तीन तल बजाओ। यस। ये यस। ये देखो, गाना जो गाते उन लोगों का ऊपर डिपेंड है, वो क्या बोलेंगे। करेक्ट। लेकिन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, सुन के फिर उसी का हिसाब से मुझे मालूम है 48 मतलब यही बजाएंगे हम। राइट। और बहुत सारे गाने वालों को ये भी थोड़ा सा हमने देखा, जो बोला ना 10% सब हमेशा ही कुछ पंडित लोग है, वो जो है वो करेक्ट। गाने का बंदिश धीन हो गया ना, वो बीट दे देते हैं, धीन टक 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 करेक्ट। धीन, ये दिखा देते हैं, नहीं तो करेक्ट। कोई धीन टक 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 करेक्ट। धीन, ये करेक्ट। बड़े बड़े गाइए जितना भी है वो दिखा देता है। करेक्ट। लेकिन बहुत सारे 80-90% गाने वाला है हाँ। जो नहीं दिखाते है। तबला जो बजाता है वो लगा दिया धीन टक टक टक, धीन टक, हाँ। वो उसी में गाएंगे। और नहीं तो कभी भी वही गाने वाला धीन टक धीन ये भी लगाए, तब भी वो कंफर्टेबल वो गा लेते हैं। तो उनको क्रेडिट भी दिया जाता है। जो आई देखो, कोई भी अंडरस्टैंड। लय पकड़ सब लो, सब में फिट। लेकिन सब। सब में फिट हो जाता है। करेक्ट। कभी कभी करेक्ट। कोई कहते हैं जो थोड़ा सा तेरे केटे थोड़ा सा जोर लगा देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा जो अभी सॉन्ग आ रहा है। तो ये सब इतना लोगों का साथ बजाया, तो ऑफ कोर्स। ऑफ अलग कोर्स। अलग अलग आर्टिस्टों का अलग अलग सोच है, अलग अलग घराना से अलग अलग ठेका भी बधा जाता है। वो नहीं करेक्ट। है जो राइट। जैसे हम बोले आमिर खान साहब का जो गाने का साथ जो ठेका लगता है, करेक्ट। वो आगरा घराना का वही ठेका वो नहीं लगता है, उसका चाल भी एब्सोल्युटली। अलग हो जाता है। वो एब्सोल्युटली। मेरा महसूस ये है, जो स्टाइल का अनुसार तबले का ठेका भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, चेंज। ये बहुत बड़ी बात आपने बोला क्या। दिस इज आई थिंक कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट कौन सी घराना में मैं घराना शब्द यूज कर रहा हूं इसलिए सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड लाइक कौन सी स्टाइल में कौन सी ठेका फिट होना चाहिए, लाइक कौन सी कंपोजिशन में चाहिए। ये आपका आप ये क्या आपका एक्सपीरियंस से आया है क्या, सुनते सुनते यू डेवलप्ड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज we think that it's very very important. देखो, ये सब क्या है, तबला एक अलग चीज है, उसमें Correct. तुम सीखो, बहुत कुछ गुरु का पास जाके बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जैसे बोला ना, गाने वाला के पास, सितार वाला के पास कोई Correct. अकम्पनीमेंट भी उनसे देखना है, सीखना है। Correct. और Correct. उसके ऊपर है जो Correct. हमारे बड़े हैं Correct. उन सबका सुनो, सुन सुन Correct. को एक अंदाजा बन जाता है जो मुझे क्या करना है। और फिर बहुत सारे बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, वो भी गाइड कर देते हैं जो तुम ऐसा ठेका Correct. लगाना। Correct. तो तुमने जो बोला अलग तो है ही। जैसे हाँ. देखो, वो कोई बहुत गारे हुआ विरम्बित में गाना गाते, Correct. जैसे खान साहब का, आमिर खान साहब का वो स्टाइल में एक हाँ. ताला गाए तो धीन Correct. टक धीन, Correct. और इसमें ठेका में धा ते ते धा ते धा 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 ते Correct. रे के ऐसे चलता है। लेकिन तुम
ये आगरा घराने में जाओ तो धिन टक टक धिन करेक्ट, टे एब्सोल्युटली धा करेक्ट, ते धा गे ते दे के, ये स्पीड में जाता है। और फिर इनका गाने में जब अंतरा मंतरा हो जाता है, बोल करेक्ट, बाट का ध्रुपद स्टाइल का कुछ काम होता है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, उसमें साथ संगत देना पड़ता है। तो वो कुछ भी करे लय का छंद का, तो करेक्ट, वो उनके साथ तबला आपको भी चलना, उनका साथ चलना पड़ता है। और दोनों मिलके एब्सोल्युटली, जब सम में आते हैं, वो बहुत मजा आता है। वो ऑफ भी एक कोर्स, स्टाइल है। और ऑफ कोई कोई कोर्स, स्टाइल है तुमको बजाने का इच्छा ही नहीं होगा, गान इतना सुर में चल रहा है जो तुम भूल जाओगे। तो वो क्या करेक्ट, है, मेरा जो सोच है, तुम अच्छा गाने के साथ बजाओगे। वो हमारा बंगाली में एक कहानी है जो त्यागे शांति, यस, त्यागे शांति, जो तुम या, जितना भी तुम छोड़ दोगे, जो अपना नहीं सोचोगे, शांति उसी में मिलेगा जो हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोगों को लोग कहते हैं कि एकम्पनीमेंट करोगे। करेक्ट, एकम्पनीमेंट का तबला तो बहुत आगे आ गया, क्योंकि करेक्ट, वो एकम्पनीमेंट छोड़ के भी तबला लोग तबला लेके सारा दुनिया घूम रहे हैं। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली, सोलो बजा लेते हैं बहुत। अभी बहुत सारे कुछ आया ड्राम का साथ, और यही, इसका साथ उसका साथ। बहुत सारे लोग तबला लेके ओन परफॉर्मेंस, जो किसी का साथ जरूरत है नहीं, वो कर रहा है। बहुत हो रहा है। बड़े बड़े ऑफ आर्टिस्ट कोर्स, को जो 2 4 5 नाम जो है, वो किनका साथ बजाता है? सब तो देखो सोलो 20 लाख रुपया लेता है सोलो बजाने में। ऑफ तबला कोर्स, बहुत आगे आ गया अभी। ऑफ ऐसा कोर्स, नहीं ऑफ है जो कोर्स, तबला वो वैसे ही पड़ा है, वो नहीं है। करेक्ट, लेकिन लेकिन एक चीज है जो हमने जब गाने का साथ बजाते हैं, तब हमको वो एकम्पनीमेंट कर रहा है, तो हमको जानना चाहिए। तो देखो, मैं किसी को साथ देने के लिए बैठे, उनको हाँ, 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 किस में अच्छा होगा, उनका करेक्ट, गाना कितना अच्छा हमसे हो सकता है, उसको मदद एब्सोल्युटली, करो, उसको अच्छा एब्सोल्युटली, करो, उसको गाने को, उसको पिटाई एब्सोल्युटली, करके वो भागाओ मत। तुम भी बजाओ, जगह है, लोग ताली देंगे। आज तो देखो, कोई भी गाने वाला हो, इंस्ट्रूमेंट वाला हो, लोग पूछते हैं तबले पे कौन है। एब्सोल्युटली, क्योंकि दिस ये इज आज नहीं है जो वो चूज कर ले। अभी अभी भी ये है, हम लोग प्रॉब्लम में है। तब भी मैं कहूंगा तबला अभी इसी लेवल पे आ गया। ऐसा नहीं, दैट्स सोलो बजा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और तबले वाला को भी फीस बहुत हो गया अभी। ऐसे नो, नहीं है वो दैट्स वेरी, যাত্রা দলে অফ কোর্স 5 টাকা দলে পায়, বাজিয়ে 5 টাকা পায়, ও কাহানি নো, এখন ভুলে যাও। এখন এখন যাত্রাও বন্ধ হয়ে গেছে, 5 টাকা পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে এখন। অ্যাবসলিউটলি রাইট, তো অ্যাবসলিউটলি আরেকটা রাইট, জিনিস যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, গানে যারা করে এখনো ওই জিনিসটা আছে, যে সমস্যার জায়গাটা আছে, যে গান করলো, হয়তো আমি তার সাথে তবলা বাজালাম, এবার দেখা গেল যাওয়ার পথে তিনি বিরিয়ানি কিনে নিয়ে বাড়ি গেলেন, আমি মুড়ি কিনে নিয়ে বাড়ি গেলাম। তো এই यही জিনিস ये मैं पूछूंगा आपको, ये मैं पूछूंगा, इस जगह में मैं आऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम लाइट इनटू दिस मैटर, एंड यू हैव वंडरफुली एक्सप्लेन्ड ऑल द क्रिटिकल थिंग्स अबाउट द वोकल अकम्पेनिमेंट। नाउ मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज, दैट बिकॉज आई हैव सीन यू टू प्ले ठुमरी, दादरा, even Bengali Rak Pradhan, even Bengali commercial song wonderfully, because you know ये जो सब्जेक्ट है, मेरा जो समझ में आता है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा समझ में जो आता है, क्या पीपल, आई हैव सीन दैट वंडरफुल तबला प्लेयर, excellent hand talim, if everything is there, but some people they can't play with the light music, it's not their plate. So इसके बारे में, ये आप, मैंने आपको सुना, ठुमरी में भी अकम्पेनिमेंट सुना, दादरा में भी सुना, राग प्रधान, बंगाली सॉन्ग, यू नो ऑल द जॉनरा ऑफ बंगाली म्यूजिक, कैसे आप प्रस्तुत किया खुद को? ये बहुत मुश्किल का है बोलना, कैसे थोड़ा सा किया है। बताइए, थोड़ा सा बताइए। ये वो बात तो आएंगे जो बड़ों का सुन सुन के। अच्छा, फिर मेरा जो ख्याल है, ख्याल का साथ अलग है, ठुमरी मैं थोड़ा वो अलग मैं है। थोड़ा मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैंने, मेरा अभी भी याद है, आप ऐसे ऐसे क्यों भी लेते थे, लाइक बिफोर द सॉन्ग आई हैव सीन यू प्ले वंडरफुली विथ वन दीपचंदी भजन कंपोज्ड बाय माय गुरुजी। इतना अच्छा किनार लेके एक
इंट्रो किया, जो मैंने which was expected from a light musicians, you know, not from a classical star artist like you. And ये जो सोच आपने बनाया कैसे कि इस गाने को मैं इस रंग से सजाऊं, ये बात आप बताइए। ये देखो, ये वो भी सुन सुन के ही होता है, ऐसा नहीं है जो हमारा क्रिएशन है ये, वो नहीं है। लेकिन जैसे तुमने बोला ठुमरी दादरा, करेक्ट। उसका चलन ठुमरी का, जैसे ठुमरी भी 2-3 टाइप का होता है, उसमें भी लग्गी भी अलग अलग होता है। करेक्ट। जैसे हमारा बनारस का लग्गी थोड़ा अलग होता है। तुमको करेक्ट। एक चीज मैंने बताओ, अभी गुरुजी ने मुझे कम से कम 45-50 साल पहले कुछ चीजें ने मुझे सिखाया, बोला तुम बजाओ। तो उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं ये क्या बेकार है, मैं क्या बजाओ। तो गुरुजी को तो बोल नहीं पाते ना, तो हमने बजाया नहीं। लेकिन उसका 20 साल बाद या 25 साल बाद हमारा अप्पा जी, सब लोग जानते हैं, पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी, यस यस यस, उनका एक भैरवी ठुमरी, उसमें उसका साथ हमारा दादा गुरु कंठे महाराज जी ने, उन्होंने एक लग्गी बजाया। अच्छा। और अप्पा जी, हम लोग अप्पा जी कहते हैं उनको। करेक्ट करेक्ट। तो अप्पा जी ने गाना छोड़ दिया और उन्होंने गिन गिन गिन्ना दा तिक्ता ता तिक्ता ता गिन गिन गिन्ना दा तिक्ता ता तिक्ता ता गिन्ना 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 गिन गिन गिन्ना गिन गिन गिन्ना ता गिन्ना दा दे गिन्ना रे, ये उन्होंने बजाया। और 20 मिनट का लग्गी, लगता है जो अरे क्या हो रहा है। तो उस दिन हम ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो गया, वही मैंने, मेरा गुरुजी ने सिखाया। तो बाद में मैंने सोचा, जो ये बार बार सुन के थोड़ा सा रीमेक का तरह बना ले, ऐसा मेरा सोच था। तो अभी भी मैं वो बजाता हूँ, हमारा दादा गुरु का। लेकिन क्या है, वो 20 मिनट का लग्गी था, अभी मुझे 20 मिनट का चांस नहीं मिलेगा, अभी 2 मिनट में बजाना है। इसलिए जैसे बम्बई में वो भी है उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब का लग्गी, ये भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस लग्गी है। उनका भी 2-4 मुझे याद है। देखो, गाने वाला से भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो कोई कोई, जैसे बुआ जी बोला ना, उनसे बहुत मैंने परन टुकड़ा सीखा। ये जगदीश प्रसाद जी आज आगे कोई है नहीं, उनसे मैंने वो निजामुद्दीन खान साहब का लग्गी मैंने सीखा था। वो दाड़ी ये सीखा था। हम बजाते नहीं, उतना ताकत है नहीं, क्योंकि वो बच्चा लोग जितना स्पीड में बजाते उतना स्पीड मेरा आता नहीं। तो जो भी है मैं बजाता हूँ, ऐसा नहीं है एकदम नहीं बजाता। तो वो भी अच्छा है। लेकिन हमारा घराना का जो लग्गी है थोड़ा सा अलग है, और वो उधर का जो लग्गी है वो भी अलग है। लेकिन जैसे बनारस ठुमरी का साथ भी लग्गी का चाल एक अलग ही होता है, और फिर पंजाबी ठुमरी का साथ भी लग्गी का थोड़ा सा अलग होने से अच्छा लगता है, और अलग होता भी है। तो गाने का स्टाइल अनुसार भी चेंज होता है। और दादरा छोटा सा और हल्का गाना है। दादरा में बहुत कुछ होता है उधर। लेकिन देखो, शादी बारी का गाना भी दादरा में होता है। तो शादी बारी में क्या होता है, वो ढोलक बजाता है। तो जब ढोलक बजाता है, ढोलक का इफेक्ट तबला में आ जाए तो सुनने में मजा आता है। जैसे देखो, ये यूपी में एक कल्चर है, शादी बारी में गाना होना, चैती होता है। चैती तुमको मालूम होगा। ऑफ कोर्स। ये चैती जो है वो 4 ताल होता है, डाडिन 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 डाडिन। तो ये भी एक चाचर में एक छंद है। एक देखो, वो तुम ढोलक का वो ठेका ले लो तो बहुत मजा आता है। तुम वो धा दिन धा धा तीन ता तीन धा धा दिन, ये बजाने से वो मजा नहीं आएगा। फिर देखो, धा तेक तीन तेक दिन दिन, धा तेक तीन तेक दिन, ये तो कारबा है। लेकिन धा दिन धा तीन ना तेक धा, ये भी है। और धा टिक ता टिक टिक धा 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 टिक ता टिक टिक धा 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 धा। तो ये हम बहुत कुछ, ये देखो, लाइट जो बंगाली सॉन्ग, जो लाइट हिंदी गाना, बम्बई का फिल्मी गाना, ये बजाना बहुत मुश्किल है, ये मामूली बात नहीं है।
क्योंकि क्या बात, देखो 3 मिनट में 4 मिनट में वो इफेक्ट बना एब्सोल्युटली, देना, तो एब्सोल्युटली, बहुत मतलब वो तालीम का नहीं है, वो है एब्सोल्युटली। मतलब बड़े बड़े लोगों का सुन के अपना सोच, और ऊपर वाला चाहे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एंड व्हाट अमेज्ड मी काकू, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए आप इतना इतना सोर्स लेके बता रहे हो, एंड आई एम श्योर द यंग जनरेशंस हु आर वाचिंग आवर शो, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज, आई बिलीव। एंड जो सबसे बड़ी बात, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जस्ट एडेड वन फेदर on your hat, that you introduced one tone, that tonal quality, you thought about it, and that वो कैसे बजेगा। एक ही धा एक ही धीन बजा रहे हो, लेकिन उसका जो अलग, जो हम कहते हैं टेक्सचर जो होता है, साउंड टेक्सचर, वो अलग होता है। इसके बारे में भी आपने सोचा है। नाउ यू ऑलरेडी आपने ये बता दिया, तो क्या रेसिपी है, कैसे आप किए हो, थैंक यू, एंड यू ऑलवेज गिव ये रेसिपी क्रेडिट्स। कुछ है नहीं, ये है, इसका गुरु है कान। यस, यस, कान यस, बता देंगे, कान सबसे बड़ा गुरु है। मतलब यस, कान यस, नहीं होता है, देखो कान कितना महत्व है। देखो आज ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक, देखो क्या क्या हो रहा है सब। ऑफ ये कोर्स। कान नहीं होता तो मास्क भी नहीं लगा सकते थे। क्या बात। सो इम्पोर्टेंट, तो सो सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, अभी मास्क छोड़ के तुम जाओगे तो पुलिस पिटाई करेगा। ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स। कान ऐसा एक चीज है हमारा शरीर का, जो कान आपको सब कुछ बता देंगे। एक कहानी तुम्हें बताए, जैसे देखो एक गाना था, तुम सुना क्या नहीं, बंगाली फोक है ये। अच्छा। वो कहते हैं जो तुम्हारा 2 आंखें है देखो, यस, 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 2 काने हैं सुनो, या, लेकिन मुंह एक है, बोलो मत। करेक्ट। सब सुनो इसीलिए देखो, बोलो इसीलिए मत। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, हु इज योर फेवरेट सिंगर? आप किसका गाना आपको अच्छा लगता है? मुझे लगा तुम पिटाई कराओगे मुझे। एकदम नहीं, एकदम नहीं। देखिए तो आप तुम ऐसे, लंदन में हो और मैं सीधा सीधा बोल दूं नो, तो आपने बाकी लोग देखा, पिटाई कर। और आपने मैं देखा। एसआरए में हूँ, और तुम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, तुमको गेट देखिए, से कॉल निकाल देंगे मुझे। ऐसे नहीं है। देखो पीपल जस्ट लव यू, यू नो दैट आप लोग, आप ऐसे तबला वादक हो जो बड़े से लेके यंगस्टर्स भी, मेरे को खुद मालूम है, व्हेन आई वाज इन संगीत रिसर्च एकेडमी, एंड आई ऑलवेज, इट वाज लाइक अ ड्रीम टू मी टू हैव यू टू प्ले विथ मी। सो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, वो आप डरिए मत। आई विल सेव यू, ठीक है, यू नो चलो तुम दिल सेव से बताओ। करोगे तो मैं ठीक है। देखो मेरा पास, मुझे जो लगता है, कोई छोटा बड़ा है नहीं, हाँ, सबका म्यूजिक अच्छा है। जिनका साथ जब बजाएंगे मैं उसी का साथ चलूंगा, हाँ, क्योंकि हाँ, कोई बड़ा आर्टिस्ट है वो बहुत तेज दौड़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उसका साथ तेज दौड़ने के लिए। जो बच्चा है वो इतना दौड़ नहीं पाएंगे, तो उनका साथ मैं आस्ते 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 लेके चलूंगा। क्या तो बात। ये मेरा सोच है, जो गाना ये अच्छा है वो बुरा है, सब लोग अच्छा है, कोई बुरा बोल के है ही नहीं मेरा नजर में। करेक्ट, करेक्ट। और तुम, और एक बात बोलो तो हंसी मजाक का है, लेकिन वो है जो बताइए। मुझे जो ज्यादा पैसा देंगे वो मेरा ख्याल से अच्छा है सबसे ज्यादा। क्या बात, क्या बात। क्योंकि it's amazing, thank you तो so देखो much। अभी तो एक एक वो हो गया ना, जो अम, किसी के पास चला जाता है, जो ऑर्गेनाइजर कांटेक्ट कर लेते हैं, तो करेक्ट। हो सकता है 10 लाख, हो सकता है 10,000, हो सकता है 2,000, वो सब राइट। लेके चला जाता है। तबला, करेक्ट, हारमोनियम सब, तुम गाने के बारे में कह करेक्ट, रहे हैं इसलिए करेक्ट, तबला, करेक्ट, हारमोनियम, करेक्ट, सारंगी करेक्ट, करेक्ट, सब लेके जाता है। तो उसमें क्या है, पेट नहीं भरता है बहुत करेक्ट। अच्छा तरह से। तो इसीलिए मेरा नजर में जो मुझे पैसा ज्यादा देंगे उसको हाँ, मैं बहुत तारीफ करूंगा और बोलूंगा वही अच्छा है। कोई लोग बुरा मानेंगे, लेकिन ये मुझे हंसी मजाक में बताया मैंने, लेकिन ये मेरा सोच है। no, that's amazing. We all know that, आप ये बात को आप ऐसे ही बोला, because I would like to share one very good message. आपको you will love it, that not only me, Aurobindo Bhattacharya, one of my bosom friend, is a
a fantastic tabla player, disciple of Pandit Shankar Ghosh ji. He just wrote that we know after Karamatullah Khan, he made a new style of vocal accompaniment. देखिए काकू, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, सब लोग ही ऐसे बताएंगे आपका जो गुण है, जो आपका द नॉलेज है. एवरीबॉडी लव. एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, जो आपने बताया. देखो एक बात पहले मैं तुमको बोलूं, इतना तारीफ हो रहा है ना, तो मुझे वो पसंद ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटा रहा हूं तो सीखने का मौका मिलता है, बड़ा बन जाओ तो कुछ नहीं सीखने का है. बड़ा तो हो गया, सीखेगा. ये तो भी मैं हम वो सब कुछ नहीं है, मैं छोटा हूँ. मैं अभी भी तुमसे सीखूंगा, तुम्हारा फ्रेंड जो बोला तबला बजाता है उनसे भी सीखूंगा. मैंने वो भी कैसे एक बता दूं, एक कंपटीशन में गए, 10 साल बच्चा एक बजाया, तो मैंने बोला अरे बहुत अच्छा बजाया, तुम्हारा वो चीज मुझे लिख के दोगे? और वो दौड़ के भागे. हाँ, बोला वो रोल आए बाहर जाके, बोला ये सामद शाह ने मुझे ऐसा ऐसा बोला. उसको मम्मी सोचा क्या क्यों बोला. तो फिर उनको गुरु ने मुझे फोन किया, बेटा समझदा क्या हुआ. तो मैंने बोला ये मुझे अच्छा लगा, हमने वो सीखना चाहते हैं, जब तुम फोन किया तो तुम ही सिखा दो. ग्रेट. सीखने का कोई एज नहीं है. ये जो बात आपने बोला, ये हम लोगों के लिए एक लेसन है दैट व्हाट एवर यू डू, व्हाट एवर यू मेक योर हाइट, आपका अंदर में जो एक स्टूडेंट है उसको थोड़ा ऑलवेज उसको जागृत करना, सीखने के लिए जो मन तैयार करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड I'd like to ask you, we are already end of our show. कोई भी ऐसा sort of sorrow in your mind, कोई भी ऐसा कुछ है जो would like to share to the younger generation that made you little bit unhappy, और कुछ दुख अंदर में ऐसे इस subject, because people just love you, and that whatever you have achieved today, and लोगों का हृदय में आपका स्थान है, और लोग आपको प्यार करते हैं, not only in front of you, by heart people love you. So इसी तरीका से आप थोड़ा कुछ दुख है अंदर में जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ ऐसे बातें प्लीज काकू. देखो दुख तो जो भी था, आज तुम्हारा साथ बात करने के बाद सब कुछ भूल गया, क्योंकि तुमने कहा जो इतना लोग मुझे प्यार करते हैं, तो दुख की बात क्या है. दुख तो है नहीं. इतना लोग जब मुझे पसंद करता है, प्यार करते हैं, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाने, तो इससे आनंद का बात कुछ नहीं है. मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने गुरु का दया से सब कुछ मिला, सब कुछ मिला. और बस मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए. जो हाँ, आखिर तक मैं कैसे चलूंगा, क्या होगा, ये बस गुरु भगवान सबके पास मेरा यही मतलब चाहिए मुझे, जो तुम मेरा जो भी चलने का पथ है, रास्ता है, वो सीधा रखो, मैं चाल सीखूं. तो दुख की बात उतना कुछ नहीं है. और तुम्हें कुछ मालूम है दुख की बात, मुझे लगा ऐसा दुख दूसरा किसी का दुख होता है, तो मुझे उस टाइम दुख. एक बार तुम्हारा आंखों का कुछ प्रॉब्लम हुआ था. करेक्ट. हाँ, तुम हॉस्पिटल में था. ऑफ कोर्स आप आए थे. मैं आए थे, तुम्हारा पिताजी के साथ बहुत बार बात किया. जो बेचारा आंखों में ऐसा हो गया, कोई तुम्हारा पेंसिल घुसा दिया आंखों में, मुझे याद है. करेक्ट. 25 साल हो गया, लेकिन हम तुमको देखने के लिए गए, और दुख उस वक्त की हुआ, तुम आंखों में देख पाओगे क्या नहीं. करेक्ट. उसमें बहुत, और आज देख के आनंद लग रहा है, वही आंखों लेके तुम इतना कुछ कर रहे हैं. And I would like to share the memory, that time actually Sangeet PRC was going to organize its first concert in the year 1994 maybe. Yeah, and I was in the hospital, and I was so upset that I couldn't attend the concert. तो ये मेरा मन में अभी भी है. आज तुमको याद दिया. Thank you so much, Kaku.
any message you want to give to the younger generations, because you know nowadays ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी जो यंग म्यूजिशियंस है अभी परफॉर्मेंस नहीं शुरू हुआ, यू नो एवरीथिंग इज इन ऑनलाइन, थोड़ा कुछ आपका आप जैसा आर्टिस्ट की तरफ से कुछ मैसेज जाए उनके पास तो दैट विल बी रियली वंडरफुल। देखो ये तो मैं भी यंगर म्यूजिशियन हूँ, उम्र ज्यादा है लेकिन यंगर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं ये जरूर बोलूंगा, जितना भी हमसे छोटे हैं उनके लिए ये मैसेज है, गुरु का भक्ति करो, गुरु के पास बैठो, गुरु से सीखो, गुरु को जांचाई मत करो। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया, गुरु को सिखा रहे फिर वो यूट्यूब में सुन के दिख रहे दूसरा कोई दूसरा टाइप का बजा रहा है, तो यूट्यूब का गुरु मत बनो, तुम्हारा जो गुरु है उसको ही मानो, उनसे सीखो, वो तुम आगे ले जाएगा। और तुम यूट्यूब को गुरु बनाओगे तो तुम पीछे ही चले जाओगे, क्योंकि यूट्यूब गुरु 20 साल हुआ, 15 साल हुआ, लेकिन हमारा गुरु शिष्य जो है वो चला आ रहा है बहुत 100 साल 200 साल 300 साल से। तो कोई बिना वो कभी म्यूजिशियन बनना मुश्किल है, गुरु का आशीर्वाद ना मिले, गुरु से ना देखो, गुरु से। और फेसबुक में तुम जो बोला वो अभी देखो 2-3 महीना बाद ये सब बंद हो जाएगा, मेरा जो राय है, क्योंकि फेसबुक में हमने तुमको बताया ना जो बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत सारे नए नए लोगों को सुन सके देख सके। लेकिन आज बड़े बड़े आर्टिस्ट को तो सुना ही, फेसबुक में भी दिख रहा है। तो अभी देखो ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है ये देखो कितना दिन चलेगा, मेडिसिन जब आ जाएगा तब देखो सब कोरोना लेके ही रास्ते में घूमेंगे। हाँ, ये और साथ ही चलना पड़ेगा। और किसी का करो, देखो अभी वो टाइम आ जाए जो मेडिसिन खा के सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में निकल जाएगा, तो उस टाइम तुम ये फेसबुक लाइव करते तो शायद मेरा कोरोना हुआ लेकिन मैंने मेडिसिन खा के बैठ के बात कर रहा है, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल से देखो 2021 में धीरे धीरे ऊपर वाला हमें फिर पुराना जगह पे ले जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और देखो बहुत सारे ऐसे वायरस आए पहले भी, लेकिन वो अभी नहीं है। एक टाइम हम लोग सुनते थे टीबी हुआ, उनसे बात मत करो, उनका पास मत जाओ। अभी कितना लोग टीबी लेके कान में हाथ दे के फिर एक सब रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहा है, तो ये भी चला जाएगा। और बच्चों के लिए, बच्चों नहीं है लेकिन सब छोटे जो हमसे छोटे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है, यूट्यूब को गुरु मत बनो, तुम गुरु से जो जिनका पास सीख रहे वो गुरु चाहते जो शागिर्द बहुत आगे जाए, तो इसीलिए गुरु बहुत कोशिश करते हैं शागिर्द को आगे लेने के लिए। वो भी मैं एक बात तुमको कह देता हूँ, मेरा गुरु का सोच, मेरा गुरु कहते थे जो देखो हमने कोई स्टूडेंट नहीं सिखा रहा हूँ, तो हम लोग सब जो स्टूडेंट नहीं सिखा रहा, क्या सिखा रहा है, किसको सिखा रहा है? बोला नहीं मैं तो गुरु तैयार कर रहा हूँ। क्या बात, क्योंकि हमारा कितना बड़ी सोच है देखिए। तो बोला जो हिंदू जन्म में हम जब पैदा हुआ हमको जाना ही पड़ेगा एक दिन, तो जाने का बाद हमने स्टूडेंट मतलब गुरु तैयार करके ना जाओ तो आके किसको जब जन्म होगा तो किनका पास हम सीखेंगे। तो इसलिए मैं स्टूडेंट नहीं तैयार करता हूँ, मैं गुरु तैयार करता हूँ, तो ये मेरा गुरु का बात है। तो कितना मैं बड़ी सोच है। तो ये सब पुराना लोग भी चला गया, अभी तो हम लोग ऐसे देखते मैं जैसे है कोई है नहीं, देखो ऐसे तो, लेकिन नहीं ये बात सही नहीं है। तुम जो भी हो इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में तुम्हारा सब खत्म हो सकता है। ऑफ कोर्स ये सब गुरु का आशीर्वाद है, और बड़े बड़े जो हुआ बिना आशीर्वाद से कोई नहीं हुआ। कोई भी सही हो, बात, कोई भी सब्जेक्ट में हो, सिर्फ म्यूजिक नहीं, सबका गुरु होता है। लेकिन हमारा गुरु भक्ति अभी भी है, अभी भी पाँव छूते, टीचर नहीं बोलते, गुरुजी बोलते। ऑफ कोर्स। और गुरु का वो भी नहीं है जो पैसा दो और गाना बजना सीखो चला जाओ, नहीं, गुरु कुछ अलग होता है। तो बाबा माँ का तरह होता है। तो
जैसे मेरा बेटा भी है, मेरा स्टूडेंट लोग भी इधर आते खाते पीते, तो मेरा बेटा जैसा ऐसा ही है। तो सही बात। जैसे सबका, किसी का 20 बेटा, किसी का 50 बेटा, ऐसा है गुरु लोगों का, बड़े बड़े गुरु लोगों का। तो ये मेरा यंग जनरेशन का लिए मैसेज है, जो तुम लोग यूट्यूब का गुरु मत बनो, अपना गुरु का गुरु बनो, और जो कह रहे वो सीखो, वो देखो सुनो, तुम भी एक दिन गुरु बन जाओगे। और ये गुरु को फॉलो नहीं करोगे तो कभी संभव नहीं है गुरु बनना। कितना बड़ी बात आपने बोल दिया काकू। And viewers, now we are going to end our show. Thank you all for watching us today. And uh, I'm so lucky, again, I'm telling that Pandit ji ka saath, you're spending some time and so much knowledge, पंडित जी so नहीं, much. समर अंकल का साथ। अभी तो समर काकू ही समर, बोली। हाँ, तो अभी पंडित तो जी नहीं, पंडित बहुत कम है हिंदुस्तान में, अभी भी पंडित बहुत कम है, उस्ताद बहुत कम है। पंडित तो हमारा गुरु, उसका गुरु, ये लोग सब पंडित थे, हम लोग भी पंडित, वो नहीं हो सकता। हम लोग बहुत छोटे हैं, पंडित नहीं है। तुम्हारा काकू है, किसी का जेठू है, किसी का दादा है, बस किसी का भाई है, किसी का टीचर है, गुरुजी भी कहते, ये लेकिन आपका पंडित नहीं है। ये आपका बड़प्पन है। ये यही तो हम लोगों का सीखना चाहिए आप लोगों से। And thank you, viewers. We are going to end our show. The next show I will definitely announce and I will post the flyer. Thank you for supporting us, for your love and regards. Thank you. Good evening. सब व्यूअर को मेरा तरफ से प्रणाम, नमस्कार। इतना देर तक बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू। गुड नाइट। Thank you. Thank you. Facebook এ এটা বন্ধ